It is now my privilege to introduce our guest speaker, Dr. Mohammad Hussain Rana, a renowned psychiatrist, author, educator, and recipient of numerous national and international honors, including the Sitara Indias. He is the chairman of the Healing Pride Pakistan, a member of National Task Force for Mental Health, and a lifelong teacher of compassion in medicine. With decades of service in both military and civil sectors and countless lives touched, he embodies the soul of today's theme. Please join me in welcoming, with great round of applause, Professor Mohammad Hussain Rana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Esteemed Principal Sahab, Professor Amir Mia, faculty members, my very dear friend of 4.5 decades, Dr. Yavar Abbas Sahab, with whom I have immeasurable, beautiful memories attached. My very dear students, ladies and gentlemen, what a huge privilege it is to return to Central Park and share some of my thoughts. Now, I'm sure you would have come across this title, and some of you might be very surprised that is it some kind of a reassurance that I am giving you about my looks today. Yahi to mera haal hai, ye pehle aise nahi tha. But it has nothing to do with me, I can assure you, because mera pehle bhi aise hi haal tha, jo aap abhi dekh rahe hain. There wasn't much to write home about. But this khubsurti that I'm going to talk to you about is to make you revisit the glory of the profession, which was is the emphasis here, an honorable profession. An honorable profession. So, what I'm going to try and highlight to you, is it possible that we reclaim our glory? And today I'll try and highlight to you that is there a path in the future that you can tread upon to actually become khubsurat again? Because I sincerely believe, with a lot of pain and anguish, and as a wounded soul, that it is very, very hard to today call my medical profession as an honorable profession. I'm sure you would have heard the statistics that the 5th largest cause of morbidity and mortality in the world is not at the hands of Israel. It is not at the hands of a terrorist. It is not at the hands of a serial killer. It is not at the hands of a psychopath. But the 5th largest cause of morbidity and mortality in the world is iatrogenicity. Now, who in the class would tell me what is this word iatrogenicity? Anybody? One of the students, yes sir. Yes, madam. Doctor-induced or physician-induced? Sorry? Doctor-induced. Oh, very good. I would just change it, health profession-induced. Because let not the blame only stay with the doctor. We, the custodians of the most honorable profession in the world, are the cause of morbidity, mortality, misery, pain, and death. Now, there is no possibility that we are the only cause of that. No. It is not possible that a warrior goes into a battlefield, fights a battle, and nobody gets hurt or killed with it. This is not possible. So I'm not referring to that. I'm talking about the medical errors that occur. Errors of commission and errors of omission. And yet the word
has the courage to consider you and me from a non-tribal profession. आप जरा सादगी मुलाहिजा करें दुनिया की. So it is not possible that a warrior can be condemned for killing. No, he cannot be. He cannot be condemned for causing injuries in the battlefield. So therefore, you and I cannot be condemned for causing or playing the role in morbidity and mortality. Of course, when you will work, there will be errors, and that is precisely what I'm going to dwell upon in a minute in more detail. But the idea is how to preserve the sanctity of our profession. मेरी आज की गुफ्तगू का बुनियादी मकसद ये है कि क्या हम उस खूबसूरती को अपने प्रोफेशन की वापस ला सकते हैं कि जो हमारा तुर्राए इम्तियाज था. डॉक्टर साहिब क्या वापस हमें कहा जाने लगेगा कभी आएंगे? और अगर कहा जा सकता है तो वो क्या रास्ता होगा जिस पर चल के आपको दोबारा लोग इस टाइटल से नहीं पुकारेंगे कि जिसके ऊपर किसी इंडिविजुअल ने एक कॉलम लिखा था, डाकू अस्पताल. किस अस्पताल के बारे में लिखा था वो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन ये टाइटल था, एक बाकायदा मजमून छपा एक बहुत बड़े सर्कुलेशन के अखबार में, और उसका टाइटल था डाकू अस्पताल. उससे बचने के लिए, और ये जो सारी गुफ्तगू है ये आपके साथ है, लेकिन आप में से जाने कितने लोगों को ये नज्म याद है, या ये नज्म अगर आपने सुनी है कभी, हम खूबसूरत थे. तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसका रेफरेंस जरा अपने ज़हन में ताज़ा कर लें, और इसके इस कलाम में जो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि थोड़ा सा वक्त अपनी आंखें बंद करके उन अल्फाज पर रिफ्लेक्ट कीजिएगा जो इस नज्म में इस्तेमाल हुए हैं. मैं यहाँ अपनी आने वाली
मेडिकल प्रोफेशन, हेल्थ प्रोफेशन के आने वालों के माथे पर बोसा देने आया हूं। And I am here to wish you a world in the future जहां पर तितलियां और जुगनू आपको आवाजें दे रहे हैं। उन तितलियों और जुगनू के देश जाने के लिए क्या नया रास्ता मुमकिन है? How can your path be different from the path that you are on right now? Because मुझे नहीं पता कि सेंट्रल पार्क की क्या सिचुएशन है। मैं एक मेडिकल कॉलेज में बहुत साल पढ़ाता रहा और वहां मेरा एक अजीब सा तजुर्बा था। और मैं यहाँ क्योंकि I'm very lucky that faculty members are sitting here and I'm truly privileged for your presence here. I don't know whether this is your observation or it just comes from my own observation. That I used to get an opportunity to meet the medical students coming to my college on day one. So जिस दिन वो आते थे उस दिन ही मेरा एक उनके साथ इंटरेक्शन होता था चंद घंटों का। और मैं उन तकरीबन 150 स्टूडेंट्स के साथ कुछ घंटे गुजारता था तो I would feel so exhilarated. I would feel so energized and happy to see their glittering faces, sparkle in their eyes, energy, bouncy, asking questions, excited, almost to the degree of being ecstatic that they have entered the medical college. The culmination of their struggle for years of toil, blood and sweat has culminated finally. They are in one of the top medical colleges of the country. जी खुश हो जाता। और फिर मेरी मुलाकात उनसे अगले 5 साल होती रहती थी। तो मैं जब तकरीबन 30 साल में उनसे पहली दफा दोबारा मिलता था तो आई वुड से कि ये वही क्लास है जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। Because they would be different. There was something not right that I could see. Number one, there was no spring in their walk. So they'd be in the corridors of the hospital, be walking. Remember my first interaction with them and the bounce and the spring in their heels that I'm talking about. Keep that in mind. And then in about third year, they're in the corridor and they're walking more like this. So I would stop some of them. Are you okay? So as if I'm waking this person from some kind of a dream. He said, मैंने कहा आपने नहीं पहचाना। जी सर आप आए थे फर्स्ट ईयर में। मैंने कहा लेकिन आप भी आए थे फर्स्ट ईयर में, आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। And then I would meet them again in final year, around the last few months, because they would come back for a rotation in my profession. So now their walk would be rather bizarre. So they'd be more like so I would stop one of the students. Watch there, Buddha. Kila brain. आपने मुझे पहचाना नहीं सर? ये आपको मैं आपके कॉलेज का प्रोफेसर ही है। आपने ओह अच्छा सर आप साइकियाट्रिस्ट हैं? Yes sir. But in no time his smile would disappear. There was no glitter in his eyes. His eyes would be dead. No sparkle, no energy.
In fact, I would get an impression कि इन्होंने कुछ लगाया हुआ है. आप समझ गए ना? हरा, आपको तो खैर पता नहीं होगा, सेंट्रल पार्क में तो इस तरह की कोई चीज मेरे ख्याल आती नहीं है ना? पूरी हरा बुट्टी, तो मतलब दिल करता था पूछने को कि पायन खैर है, मैं चूंकि लौल का हूं, तो वो फिर मैं एकदम जब इस तरह की सूरत हाल में होता हूं तो फिर मैं जरा बिल्कुल अपने असल पे पहुंच जाता हूं. तो असल में उनको देख के लगता है कोई टूर प्रोग्राम चल. तो दिस डिजास्टर, मैं ये सवाल पूछता रहा अपने आप से कि ये जो फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट था, उसको क्या हुआ? उसको क्या हुआ? What happened? So, मेरी नजर में उसको उस हाल तक पहुंचाने में किसी का रोल था, और वो किसी ने मैं भी शामिल था. तो मुझे हर वक्त ये समझ आती थी कि ये जो लड़का है, ये जो खातून है, ये मेडिकल स्टूडेंट है, ही और शी व्हाटएवर, ये इसका खुद अपना ये हाल है कि इसके बारे में ये तमाम बातें कही जा सकती हैं जो आप यहां पढ़ो. इसमें इसी को क्या इलाज करना है? ये तो खुद ही एक अजीबोगरीब कैफियत में है. What kind of? And then I'm going to now pass this individual to become my house physician. And then I will take lot of pride in the fact कि अब मैं अपने हाउस फिजिशियंस और हाउस सर्जन्स को 72 घंटे की ड्यूटी पर लगाऊंगा. वो 48 से 48 घंटे की ड्यूटियां करेंगे. और जब वो पूछेंगे कि सर मैं मतलब फौत हो जाता हूँ शाम को काम कर करके, तो ये मतलब मेरी एक लाश किसी कैफियत होती है. नहीं, इससे आपकी रेजिलियंस में इजाफा होगा. हमारे जमाने में तो हमने 4-4 दिन की ड्यूटियां की है ना. हाँ, थ्रो आउट. What are you doing? So there's something going on that is not right. That is not right. And what is that? One of my favorite quotes from Guru Japan. It cannot happen that the people sitting in the front and I, foremost, part of the faculty, does not know what happens to medical students. ये नहीं हो सकता. No single leaf can go pale without the knowledge of the tree's trunk and its roots. तो फिर ये जर्द कैसे हो गए पत्ते? इन पर खजां कैसे आए? मेरी नजर में आज खजां का सबसे बड़ा इशू ये. एक फिल्म है, ये 1960s की फिल्म है, आपको कभी मौका मिले देखिएगा. लेकिन हॉर्सेस यहां पर एज अ सिंबल ऑफ डिजायर्स, ड्रीम्स एंड विशेस के तौर पर है. कोशिश करें खासतौर पे लड़के कि वो तस्वीर को जरा दाईं तरफ से कम और बीच वाली जगह पर ज्यादा देखें. उस तरफ बार बार आपकी नजर जा रही है, मैं देख रहा हूं. तो जरा बीच में रहे, अच्छा होता है जिंदगी में बीच में रहना. सो कोशिश करें थोड़ी सी. आई नो इट्स टफ, बट दे शूट हॉर्सेस. इट्स समवेयर somebody shot the desires, the dreams that the medical student brought to a medical college. Somebody shot.
somebody shot. And how did it start? First thing was to start to hear from everybody. आप मेडिकल कॉलेज में तो आ गए, लेकिन मेडिकल प्रोफेशन में पाकिस्तान में अब क्या रखा हुआ है? एथिक ही रह गया। कि कोशिश करो कि स्टेप 1 करो, तो स्टेप 2 करो, तो नसो। This is the statement that they hear from none other but their seniors and their seniors and very seniors. और उससे ज्यादा जो सीनियर है वो तो आपको अवेलेबल नहीं है। क्या उनका मैं जिक्र नहीं करूंगा, उनसे मुलाकात ही पॉसिबल नहीं है। Again, I'm not talking about Central Park. Please don't feel offended. I'm talking about my experience in my profession. So please do not feel offended by any of what I'm trying to say. अमेरिका जाओ, बस फिर क्या होगा? वहां पर कुछ अर्से के बाद आप 3-4 साल की एक हो करेंगे, डिप्लोमेट बन जाएंगे, और उसके बाद फिर आपका एक बड़ा सा घर, लंबी सी गाड़ी, और हो सकता है कि अगर आप कार्डियोलॉजिस्ट बन गए या आप कोई सर्जन बन गए तो फिर तो आपके हेलीकॉप्टर भी नहीं। आप कहते हैं ये मेरे पेरेंट्स की टूटी जूती भी नहीं थी, इतने मेरे डॉक्टर देख रहे हैं, वो स्कूटर में फिर रहे हैं, मोटरसाइकिल से लीड हो रहे हैं, बोला कि तुम्हारा 50,000 रुपये महीना मुकर्रर हुई है। So what is this dream that somebody is describing to me? So they get into a race to win that one residency that is waiting for them amongst thousands of people from around the world. To win that seat of residency is a dream of every medical student today, whether we like it or not. This is how we are shooting. So 4th year में किसी को पकड़ के बैठाना ही मुश्किल है, क्योंकि वो स्टेप्स की तैयारी कर रहे हैं। इत्तेफाक से बीच में आपका इम्तिहान आ गया तो वो भी दे देगा, लेकिन वो तैयारी कुछ और कर। इस दौरान में उसको अपनी हाजियां पूरी करने के लिए जरूरत है कोई एक्सप्लॉइटेटिव और मैनिपुलेटिव तरीके निकालने की, हाजियां पूरी हो जाए। क्योंकि ऑल दैट द यूनिवर्सिटी अनफॉर्चुनेटली इन दिस कंट्री, एवरी मेडिकल यूनिवर्सिटी इज इंटरेस्टेड इन, इज कि आप क्लास में मौजूद हो, आप मौजूद हो क्लास में फिजिकली। What they do not understand is the phenomenon, sir, my esteemed principal sir, is the phenomenon of presenteeism. Presenteeism is when you are present in a class but you are absent. कितने ही लोग हैं जो मौजूद तो हैं मगर मौजूद नहीं। तो अब वो स्टॉल आपको पता नहीं याद किसका है? बैठना क्लास में कि हाजिरी ना लगाए। This is how we treat ourselves. This is how we kill spirits. और मैं बड़ी दफा जब ये बात करता हूँ, बड़ा सब किसी तरह की ड्रीम्स करते रहते हो, बड़ा एक आइडियलिस्टिक कदम कर रहे हो। अगर कोई मेडिकल स्टूडेंट क्लासेस नहीं आएगा तो पढ़ेगा किस तरह? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन टुडेज वर्ल्ड ऑफ Google, in today's world of Meta, in today's world of artificial intelligence, which particular professor, first of all myself, can give a better lecture than that is given on YouTube? So you want the medical students to come and sit in a class and watch me read what my slides say for me. So, mirror function test. This is a test of the function of the liver.
Thank you very much. I mean, how profound. I mean, anybody will think that liver function test is what the testing the function of the liver. And that's really deep, isn't it? And then I'm going to read. The liver function test will comprise of and in the meantime, people are going to sleep. People are back to their mobile. People are playing, you know what. There I go into detail. And जब मैं इधर मुड़ के देखता हूँ देखो ये मैं कहता हूँ खड़े हो जाए आप उठ के आप मेरी क्लास में सो रहे हैं सर आप तो खुद सो रहे हैं मैं फिर अक्सर मैं सेंट्रल पार्क का जिक्र नहीं मैं आप I'm just talking about the world in my country. मैं अपनी बात कर रहा हूँ सर मैं अपनी बातें कर रहा हूँ मैं आपको गलत नहीं कर रहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि हम मारते कैसे हैं इंसानों को जो मेडिकल स्टूडेंट कहलाते हैं how do we shoot horses who had come galloping into this race course called the medical college. Corrupting influence of wealth and power is what we watch in whom they idolize as their teachers. देखते हैं किस तरह मैनिपुलेशन हो रही है किस तरह एक्सप्लॉइटेशन हो रही है to get higher and higher and higher in the order of wealth in the country by the medical professionals. What is the difference between private practice patient and how he is to be managed and looked after and a patient who comes for free treatment? जो हाथ मांग के खड़ा है सर मैं दवाई नहीं मिल रही सर ताड़ी बड़ी मेहरबानी ताड़े बच्चे जो ले रहा है किसी ने फ्री चेक करे मैं दवाई नहीं मिल रही सर मेरा टेस्ट भी फ्री हो गया हाँ हो जाएगा चल जाओ नेक्स्ट सो द OPDs of a public sector hospital ladies and gentlemen ranges for a single doctor from 100 to 150. This is what a postgraduate trainee sees in a public sector hospital. तो मुझे नहीं समझ आती मैं साइकियाट्रिस्ट हूं मुझे नहीं आज तक समझ आई कि एक डॉक्टर एक दिन में सुबह 9 बजे से लेकर और 1 या 2 बजे तक 100 मरीज कैसे देख सकता है मुझे नहीं समझ आई तो फिर क्या है तो फिर मुझे लगता है कि हम सब असल में ओपीडी के पीर साहब बैठे हैं जिनको 100 लोगों ने आगे देखा और जाके कहा कि 80 डॉक्टर बुखा क्यों डॉक्टर बुखाया फिर उन्हें की किया उन्हें का टेस्ट करा ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲੈ ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ ਐ ਲੈ ਪੰਜੀ ਦੇ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸਸਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨੰਬਰ एलिफेंट अगेन जैसे मैं बार बार आपसे 10 साल कर रहा हूं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू these are then those things through which we shoot those horses who entered the medical college as medical students and therefore they learn how to never go on steps in life मैं मेरा प्यारा दोस्त यावा यहाँ आपके सामने मुझे पता है कि हम एक मिडिल क्लास घर में पैदा हुए हमने जिंदगी में सीढ़ियां चढ़नी सीढ़ियां चढ़ते गए मौला का करम होता गया हम सीढ़ियां चढ़ते गए लेकिन आज का डॉक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दैट आई हैव मेंशन्ड is no more interested in taking steps. The only 2 steps that he is interested in is the ones that I have already talked about. जिंदगी में वो सब कुछ हासिल करने के लिए अब सीढ़ियां चढ़ना नहीं अब थोड़ा सा शिकवा अपने बारे में भी सुनने आपको सीढ़ियां चढ़ने का शौक ही नहीं है
आप एक टार्जन स्विंग लेना चाहते हैं इनटू द realms of wealth and power. अब एक ही दिन में इस किनारे से उस किनारे तक जाना चाहते हैं जहां हमें जाते हुए 3 डेकेड लगे. आप एक दिन में ऐसा करना चाहते हैं. तो टार्जन स्विंग के लिए सबसे पहले टार्जन होना चाहिए. ऐसे तो कोई नहीं नजर आ रहे वैसे. मतलब ये जरा अपने मसल को गौर कर लें. मतलब जरा देखिए जरा मसल आपकी और फिर टार्जन के साथ कंपेयर करें तो जनाब ऐसे रस्ते जी टाइप हो गए. ये आपकी ट्रेजेडी है that you are not ready to take steps in life. You do not want to ascend through a gradual, slow progression towards the zenith of your profession. But then, having said that, I cannot blame you. So, फिर आप जब आप टार्जन स्विंग लेना चाहते हैं तो फिर then you would like to taste the forbidden fruits. फिर आप वो काम करना चाहते हैं या आप करना चाहेंगे जो कि आपको उस जन्नत से इस दुनिया की जहन्नम में लेके जाएगी. वहां पर क्या होगा? वहां मेडिकल प्रोफेशन गुलाम होगा. वहां सेहत के स्टॉल लगेंगे. वहां बीमारियों की सुपरमार्केट्स होंगे. वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन होगा. वहां पर मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर बिकेगी. सीटें बिकेंगी. तो जब कोई सीट खरीद के आएगा किसी मेडिकल कॉलेज में तो फिर उसके अब्बा ने प्लॉट तो बेचा होगा. उसके अब्बा ने कोई जमीन तो रहम की होगी. किसी मां ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई हुई जेवर कहीं ना कहीं तो बेची होगी. तो हर दफा पूछती तो होगी वो कि पुत्र डॉक्टर कदों बनना है, तीये कदों डॉक्टर बनना है, कदों मेरे जेवर छुटनगे, कब मैं दोबारा प्लॉट खरीदूंगा तुम्हारी कमाई से. And therefore, the whole circle is going to start all over again. And this circle, unfortunately, ladies and gentlemen, is not a citric acid cycle. It's a negative nitrogen balance in which the body will go into. It will go from not a loop, but a grinding halt to the loops of the body. And the physiology will turn into pathology. And the body is going to go either into very severe acidosis or into a very severe alkalosis. अब जरा अगली बात भी सुन ले. ये सिर्फ मेरी और आपकी कहानी नहीं है. This is what you're going to compete with. This has already arrived. It is at knocking at our doors, and it is going to be here. This is what you're going to compete with. जरा कोई माइकल लाल हाथ तो खड़ा करके बताए जो मुझे ये कहेगा कि मैं एक रोबोट से बेहतर सर्जरी कर सकता हूं. नहीं कर सकते, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी एक्चुअली 360 डिग्री की एनाटॉमी को स्टडी करके होती है. बेहतरीन सर्जन जो यहाँ सेंट्रल हॉस्पिटल के होंगे वो उनकी प्रॉब्लम ही ये है कि वो 360 डिग्री तो टिश्यू नहीं देख सकते, रोबोट देख सकते हैं. आपके जो प्रिंसिपल साहब हैं ये लाहौर के नहीं पाकिस्तान के एक मायनाज सर्जन कंसिडर होते हैं. क्योंकि ये मेरे कॉलेज से हैं, मैं इनको सफर करता हूं. मुझसे कोई पूछता है कि कोई तरीका हो सकता है कि मैं प्रोफेसर आलम मियां को दिखा लूं, मैं कहता हूं कुछ तो नहीं. मैं उनसे लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराऊंगा, लेकिन इनकी लिमिटेशन क्या है? इनकी विजन रोबोट की नहीं है. क्यों सर, मैं गलत तो नहीं है. He is going to see an issue 360. They want to do minimal damage. So you are going to compete with robots. You are going to
ever be able to make a prescription of precision medicine which will go into that particular DNA which has to be activated for the initiation of the neurotransmitter at the synapse. That's precision medicine. That is meant for me on the account of my genetics and all the rest that you see here. That's what you're going to compete with. तो अपना जरा हाल भी पहले देख लें, अपना माजी भी देख लें और अपना मुस्तकबिल भी देख लें. So, do you have a chance? Yes, you have a chance. Now, in the next few minutes, I'll try and highlight to you the chance that you have. I will talk to you about something that the robots and the shooters of the horses can never invade within you. अगर ये बात मैंने आपको पहुंचा दी तो फिर आपको ये नुस्खा कीमिया हाथ आएगा कि वो क्या काम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता, which will make you irreplaceable as a health professional in life, inshallah, if you would listen to this talk. You would have to now move on in the future and get out of this mesmerizing tradition of preclinical and vesical and clinical. You have to go beyond this. Obviously, these are very important aspects of medicine. But you would have to move on. One thing that artificial intelligence cannot have is passion. Because it deals with or replaces human IQ. It's artificial IQ, artificial intelligence, intellect को replace करती है. Passion को नहीं replace कर सकती. Passion में और intellect में क्या फर्क है? Passion और intellect का फर्क बुनियादी तौर पर ये है कि जो intellect है ये चीजों को memorize करती है, सॉर्ट करती है, उनके बारे में कॉग्निटिव प्रिंसिपल्स को ऑपरेट करते हुए C1, C2, देयर इज अ मेडिकल एजुकेशन सिटिंग हियर, C3, C4, C5 एंड C6 लेवल पर कॉम्प्रिहेंड करती है. अब मैं उनकी डिटेल में नहीं जा सकता कि C1 का क्या मतलब है और C6 क्या है, लेकिन कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ कॉग्निशंस करती है. दिस इज व्हाट इंटेलेक्ट इज. इसको रिप्लेस किया जा सकता है बिकॉज कॉग्निशन है, समझ-बूझ है, समझ-बूझ को रिप्लेस किया जा सकता है. This is the problem solving ability of the brain. What is the quickest way of solving a problem is through intelligence. This can be replaced because जो processors हैं वो processors सबसे ज्यादा तेज मशीन के हैं आपसे ज्यादा. जैसे मैं पैदल चलता हूं और मेरे और F-16 के दरमियान एक फासला है, इस तरह ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और मेरी ह्यूमन इंटेलिजेंस में फासला है. मैं भी वो काम कर सकता हूं, लेकिन जैसे पैदल चलता हूं तो एक दिन में मैं लाहौर पहुंचूंगा, लेकिन ऐसे पहुंचेगा अगर F-16 होगा. That is artificial intelligence. So that can be replaced. But what is passion? Passion is इश्क. जिस मंजिल पे इश्क पहुंचावे अकल में उसका कुछ अंदाजा ही नहीं है. अकल में खबर न पाई हुई जिस मंजिल पे इश्क पहुंचावे. इसी को जो कमाल है ना वो ये है कि वो चीजों का होलिस्टिक ओपिनियन बनाती है. उसके अंदर उस होलिस्टिक ओपिनियन की बुनियाद में एक एनर्जी पैदा होती है और वो उस एनर्जी की बुनियाद पर it understands things which are more than the sum of its parts. This is the philosophy. जिस वक्त मैं 3 नुक्ते लगाता हूं, 1, 2, 3, तो पैशन उनको 3 नुक्ते नहीं कहता, आईक्यू उनको 3 नुक्ते कहता है. तो एक देखने वाली आंख ने कहा, जब उसने ये 3 नुक्ते देखे तो उसने कहा ये तो ट्रायंगल है. एक आशिक आंख ने देखा और उसने कहा ये तो
रब है, उसका नबी है, उसका वसी है। अब आशिक की आंख बदलती गई और इन 3 नुक्तों की इंटरप्रिटेशंस बदलती गई। नुक्ते तो 3 ही थे, ये इंटरप्रिटेशंस बदल रही हैं। ये किससे बदल रही हैं? ये आईक्यू से बदल रही है। किस फिनोमेना से बदल रही है? इश्क से। अगर आप उन दिनों अनफॉर्चुनेटली किसी इंसानी इश्क में मुब्तला है तो एक तो आपको दुआ करनी चाहिए। दूसरा ये है कि आपको ये उनका घर का रास्ता नजर आना शुरू हो जाए कि इधर से इसका मतलब लेफ्ट जाना है, वहां से राइट जाना है, तो आगे निकल है। This is how those 3 dots should look at, and you will look at them. So जो आपकी कैफियत होगी उसके अंदर इंटरप्रिटेशन आ जाएगी। ये चीज है जो कभी कभी कोई मशीन नहीं पैदा कर सकती अपने अंदर। अब इस पैशन को आपने किन चीजों के साथ चेंज करना है कि मेरा और आपका एज ए मेडिकल प्रोफेशनल पैशन 3 लेवल पर चले। ये तीनों लेवल ऐसे हैं जो कि मुमकिन नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। It is not going to be interested because it is replacing the industrialization. It is not interested in so when you will invest in public health and when you will invest in prevention of diseases, when you will get interested in the promotion of health, when you will get interested in protection of health of people, the robot is not interested because it doesn't make any money. Why would it be interested? And why should it do it? And how should it do it? The robots are not interested in prevention. Robots are not interested in public health because the industry wants the sick. उसका जो क्लाइंट है वो तो बीमार है, उसका बीमार होना जरूरी है, तो वो अपने प्रोफेशन के खिलाफ क्यों जाएगी भाई? तो वो आप में से तमाम लोग जो इन 3 कैफियतों में चले जाएंगे, जो इंसान को इश्क की निगाह से देखने लगेंगे, आशिक की नजर से देखने लगेंगे, उनके अंदर पैशन डेवलप हो जाएगा। और जब पैशनेट आप हो जाते हैं तो फिर क्या होगा? TLC से क्या बनता? टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टेंडर, लव एंड केयर। मशीनों में नहीं होती। मशीनों के लिए मोहब्बत करना मुश्किल होता है और इश्क करना नामुमकिन होता है। It doesn't make any sense to them. So, unconditional, जहां आपको ये फर्क ना पड़े कि मैं पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में बैठ के एक मरीज देख रहा हूं या प्राइवेट सेक्टर में बैठे हुए एक मरीज को देख रहा हूं, मेरे लिए दोनों एक। अब ये बातें आप जब सुनते हैं तो किताबी बातें, ये कैसे हो सकता है? एक बंदे ने मुझे 5000 रुपया दिया और एक बंदा जरा टका भी ना दे, जिन्हें दोनों एक तरह देखा। सर कैसी इम्पॉसिबल सी बात लग रही है आपको सुन के? आप मेरी नादानियों और मेरी बेवकूफियों पर हंस रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये मैंने बहुत सीनियर लेवल पर लोगों को ये गुफ्तगू करते सुना है। ऐसे कैसी बातें कर? जो बचाएगा आपको बेटा, मेरी प्यारी बेटियों, जो चीज आपको बचाएगी वो ये, जो आपको मशीन से बचा लेगी, और शायद वो घोड़ा बच जाए जिसको हम सब ने मिलकर शूट करने की कोशिश की। पर उसके लिए ये शर्त है, आपकी जिंदगी में डिजीजेस को ट्रीट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है।
वो डॉक्टर भी किसी बीमारी को इलाज नहीं कर सकता, डॉक्टर ही नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर सिर्फ बीमारियों का इलाज कर रहा है और उसका मैनेजर वो भी डॉक्टर नहीं है। Who's going to tell me in the hall the meaning of the word doctor? Anybody? One of your teachers said it. The word doctor means a teacher. Teacher. सिखाने वाला, तो सिखाने वाला नहीं सिखाता होगा लोगों को। आपने जब सिखाना होगा तो क्या आप ये सिखा रहे होंगे? क्या आप ये सिखा रहे होंगे? ये तो आपका आर्ट है, तो आपकी साइंस है, आप ये सिखाते हैं। तो नोबल प्रोफेशन के लोग वो होंगे जो यहां काम खत्म नहीं करेंगे, जिनको मालूम है मैं जैसे डॉक्टर हूं और मुझे अपने आप को बचाना है, मैं वो घोड़ा नहीं बनना चाहता हूं उस शॉट, तो फिर मुझे इसकी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये पढ़ना पड़ेगा। Is there a department of ecology or spirituality, or for that matter of meta sciences, metaphysics? We have only departments related to management of diseases. So if Central Park Medical College wants to invest in the future, it would have to liaise with, I mean, this is a word of liaising, of communicating, of linking up. There is no point, you don't require a building for meta sciences, you don't require a building for ecology. You just, मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ इकोलॉजी कैसे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोलॉजी कैसे बनेगा फिल्म विभाग में। मैं एक्चुअली वही बातें नहीं करता। The day your students of community medicine start to have their classes in the adjacent village to Central Park, जब वो क्लास उस गांव के छप्पड़ के ऊपर होगी और उस दिन पढ़ाया जाएगा वाटरबोर्न डिजीजेस इन कम्युनिटी मेडिसिन, उस दिन इकोलॉजी समझ आएगी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं इसके साथ कि अगर किसी छप्पड़ के ऊपर पब्लिक हेल्थ की क्लास हुई, कम्युनिटी मेडिसिन की क्लास हुई, तो एक भी बच्चे की आपको हाजिरी नहीं लगानी पड़ेगी, ये सारे वहां पहुंचे होंगे। ये मरे नहीं, अभी ये जिंदा है और आपको अल्लाह ने जिंदा ही रखे। सो दिस इज हाउ व्हेन यू रिलेट whatever you study to the environment and changing the circumstances in the environment in which people are living, that is when the departments of ecology are formed. Departments of meta science and metaphysics is not about studying physics. No, it is not studying physics. It is about to relate to the people in the realm of engineering, in the realm of computing. Supercomputers. जब आप अपने स्टूडेंट्स को इंटरैक्ट करवाएंगे with those universities that are teaching meta sciences, you will start to relate and interact. इनकी मुलाकात नहीं होती किसी के साथ, ये इधर फंस गई, इस डरबे में, इस डरबे में। You cannot be known to anybody. आपका अपना भाई अगर इंजीनियर बन रहा है, आपने आयशा जी उससे पूछा कि यार ये जो इंजीनियरिंग का नॉलेज है मुझे भी थोड़ा सा बता, मैं आजकल एक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस करना चाहता हूँ, मुझे उसकी टेक्निक समझा, इसकी फिजिक्स क्या होगी, इसकी मैथ्स क्या बनेगी, how can I make it into something that nobody has invented before? So when you would get these students to interact with all those departments that are spread out in various parts of Lahore, चाहे वो किसी सेमिनार के थ्रू हो, चाहे वो ज्वाइंट सेशंस के थ्रू हो, या आप इनकी प्लेसमेंट्स कर रहे हो उन जगहों के ऊपर कि जाओ कंप्यूटिंग कॉलेज में जाके बैठो, जाओ लम्स जाओ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाओ, आपकी प्लेसमेंट वहां होगी 2 महीने के लिए, 3 महीने, 1 महीने के लिए, 3 हफ्ते के लिए। New ideas would spring and their minds would open up to other sciences, so many different sciences, and there they would also meet
the spiritual dimension of their life, which is spiritual. अब spirituality का मतलब ये नहीं होता कि 5 रोज नमाज पढ़ते रहो, ये नहीं होती spirituality. Spirituality is the capacity of an individual to understand why do I offer prayers. स्पिरिचुअलिटी ये होती है कि जिसमें पढ़ने वाला ये कहता है कि लोग की 5 वेले मैं हर वेले 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज को कायम करता हूं. यानी जिस कंसंट्रेशन से मैंने फजर पढ़ी है, जिस कंसंट्रेशन और जिस तवज्जो से मैंने अपने रब के साथ गुफ्तगू की है फजर में, अब फजर से लेकर जोहर तक हर आने वाले के साथ, हर मरीज के साथ मेरा इंटरेक्शन उसी तवज्जो से होगा जिससे मैंने नमाज पढ़ी. ये है नमाज कायम करना. तो ये कंसंट्रेशन है जो नमाज सिखाती है, वो नमाज कायम कर देगी आपके अंदर. इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं. जब आप हर काम को एक डेप्थ में जाके करते हैं और इश्क के साथ करते हैं तो स्पिरिचुअलिटी जन्म देती है. ये भी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है जिनके लिए लाखों करोड़ों अरबों की बिल्डिंग्स नहीं है. इसके लिए सिर्फ ज़हन का खुलना जरूरी है ऑफ द पीपल हु आर इम्पार्टिंग मेडिकल एजुकेशन. लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपनी गुफ्तगू के आखिर में पहुंच गया और मैं यहां आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि एक मेजर पैराडाइम शिफ्ट रिक्वायर्ड है. पैराडाइम शिफ्ट बेटा ये होता है कि जिस वक्त आपके सोचने का, समझने का और जिंदगी को देखने का तरीका तब्दील हो जाए. जब आप ये जुमला पढ़ते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये एक पैराडाइम शिफ्ट है. यानी इससे पहले मेरे बहुत खुदा थे, मगर आज से कोई और खुदा नहीं है. दिस इज अ पैराडाइम. इल्लल्लाह, सवाए एक खुदा के. तो जिस वक्त ये तब्दीली आपके अंदर आती है तो उससे आपका पर्सपेक्टिव जिंदगी का तब्दील हो जाता है. तो पैराडाइम शिफ्ट लाना है और उसके लिए किसी लेक्चर की जरूरत नहीं है. ये आपका जाती तरीका है समझने का कि जिस दिन आपको ये बात समझ आएगी कि मेडिकल कॉलेज में बेसिक साइंसेस, प्री क्लिनिकल साइंसेस और क्लिनिकल साइंसेस के इम्तिहान पास करने में नहीं आया हुआ. मैं सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज में एक एटमॉस्फेयर, एक क्लब में आया हुआ हूं. इस क्लब में मैं ये सीखने आया हूं कि जिंदगी किस भाव बिक रही है, उसकी क्या साइंस है, और मुझे इस भाव में बिकने से बचने के लिए कौन सी स्किल्स की जरूरत है, ये सीखने आया हूं. मैं मरने नहीं आया यहां नशा करके. लेकिन ये जिंदगी है तो फिर मैं जिंदगी से वैसी जी. ये कैफियत है ना जिसका मैंने यहां से बात शुरू की थी आपकी. सो to move from that state of disease and learning of diseases to life sciences and life skills training is what is your paradigm shift. And then you will find enough opportunities and enough wonderful people sitting in the front who will be happy to get across to you. और फिर उनको एक लुत्फ आना शुरू होगा आपसे बात करते हुए और आपकी मोहब्बतें परवान चढ़ेंगी उनके साथ एक और ही लेवल पर कि जहां जिंदगी सीखने का और जिंदगी को समझने का मौका आपको मिलना शुरू हो जाएगा. और उसके लिए जनाब ऐड करना पड़ेगा एक डायमेंशन आपके इस अस्पताल के साथ. तो मियां साहब और ताहिर साहब और चेयरमैन साहब उन तक हमारी ये बात पहुंचाइएगा कि इतने करोड़ों अरबों में अस्पताल को बना दिया, एक वेलनेस सेंटर भी बना जहां लोगों को सेहतमंद रहना सिखाया जाए. वो सेहतमंद है, हाउ टू प्रोटेक्ट हेल्थ, हाउ टू प्रिवेंट डिजीज, इसकी भी क्लासेस हो रही. और सारे स्टूडेंट्स जिनको ये बताओ कि मैं अब वैसा नहीं रहा, मेरी जो स्प्रिंग इन द हील था, जो स्पार्कल इन द आई थी, वो खत्म होने लगी है, तो उसको बताओ मैंने कहां जाना है. मुझे अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, मुझे साइकाइट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, मुझे तो वेलनेस सेंटर जाने की जरूरत है. वेलनेस सेंटर सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, वेलनेस सेंटर सिर्फ फैकल्टी के लिए नहीं होता, उस कम्युनिटी के लिए भी होता है, जहां वो लोग आते हैं जो भी सेहतमंद है,
वहां डॉक्टर्स ये सिखाते हैं कि सेहतमंद तो आप हैं, सेहतमंद रहना कैसे है। इसके अंदर जब इन्वेस्टमेंट शुरू होती है तो फिर ये वाले मेडिकल स्टूडेंट्स फील करते हैं कि हम वाकई डॉक्टर बन गए। फिर हमारी इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स ऑफ डिजीज के लिए नहीं है, हमारी इन्वेस्टमेंट हेल्थ के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ, प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए है। और इस प्रोसेस में दे गैदर द विजडम दैट मेक्स देम खूबसूरत। सत्यम शिवम सुंदरम, ये फिल्म आपने बिल्कुल ही देखनी, देखने वाली ही नहीं, ये खतरनाक फिल्म नहीं देखनी। लेकिन ये एक फ्रेज है जो आपको ये बताता है कि जिंदगी में सच्चाई की, नर्चरेंस की, रबूबियत की और हुस्न की, खूबसूरती की और एहसान की कैफियत में रहने वाले लोगों को डॉक्टर कहते हैं। और फिर ये डॉक्टर होते हैं जो एक ख्वाब देखते हैं आइंदा का, और जॉन एलियट की ज़बान में इस ख्वाब को कहते हैं कि एक दौर था जो हो चुका, एक दौर है जो आएगा, एक ख्वाब देखा जा चुका, एक ख्वाब देखा